Hello children, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we are going to continue with our exercise 5.1. So as you can see we have solved the first 4 questions of this exercise already. So question number 4 we have already discussed in our last video. So in this video we'll be starting with our 5th question. So question number 5 of exercise 5.1 is on page number 89 of our NCERT book. Question number 5. So question number 5 says, verify whether D is the midpoint of AG. So this is question number 5 and the diagram here is zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So we have A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Okay, so this is the diagram. Now, what does the question say? Verify whether D is the midpoint of AG. A is here, G is here. ये एक लाइन सेगमेंट है जिससे हमें पता चल रहा है इस लाइन से कि AG is a line segment. ठीक है? So AG एक line segment है. We have to verify that D is the midpoint of this line segment. What do we mean by midpoint? Suppose we have a line AB. ठीक है? Line segment है हमारे पास एक AB and it says C is the midpoint. So midpoint का मतलब क्या है कि ये उस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है कि जैसे यहाँ पे C आ गया, इट मीन्स AC विल बी इक्वल टू CB. दोनों इक्वल होंगे बिकॉज ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. AB अगर 4 सेंटीमीटर है हमारे पास, सो AC और CB 2 सेंटीमीटर के हो जाएंगे. इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड होना एक लाइन को कहते हैं मिड पॉइंट. मिड पॉइंट से क्या हुआ, उस पॉइंट ने उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि वी हैव टू वेरीफाई दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG. मतलब क्या D AG को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. सो लेट्स स्टार्ट हाउ वी विल चेक. D इज ऑन पॉइंट यूनिट 4. ये यूनिट्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो फ्रॉम A टू D देखते हैं हमारे पास कितने यूनिट्स हैं. सो AD इक्वल टू फ्रॉम A टू B 1 यूनिट, फ्रॉम B टू C second unit and from C to D third unit. So 3 units हैं in between AD. ठीक है, and then D और G के बीच में देखते हैं कितने units हैं. So 1 unit from D to E, E to F second unit, F to G third unit. So it means again we have 3 units. अब AD 3 units हैं, DG 3 units हैं, तो total AG 6 units हैं. So D ने डिवाइड करा इसको 2 इक्वल पार्ट्स में, जब भी तो ये 3 यूनिट्स इधर 3 यूनिट्स इधर हो गए. सो इट मीन्स AG इक्वल टू AD प्लस DG. ठीक है, 3 + 3 6. हेंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG. So this is correct. जो D है वो मिड पॉइंट है AG का. So this is the just for explanation. मेन हमारा जो सोल्यूशन है वो इधर है. So I hope this question is clear to you. Verify whether D is the midpoint of AG or not. So पहले AG को हम लोकेट कर लेंगे कहाँ पे है. देन D को अब हम AD को चेक करेंगे एंड DG को चेक करेंगे. दोनों इक्वल है, इट मीन्स
डी ने इक्वल पार्ट्स में दोनों को डिवाइड किया है, इट मींस डी इज द मिड पॉइंट. ओके, सो AG 6 सेंटीमीटर है टोटल एंड AD प्लस DG 3 सेंटीमीटर हैं. इट मींस दैट यस D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG. D ने AG को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 सेंटीमीटर इधर, 3 यूनिट्स इधर, 3 यूनिट्स इधर, तो टोटल है 6 यूनिट्स. ओके, so this was question number 5 of exercise 5.1. Please pause the video and take the screenshot, or else you can note it down in your notebooks. All right, so I hope you have written this question also, the solution of this question also in your notebooks. So this was question number 5. Now let's move on to question number 6. So question number 6 of exercise 5.1, again on page number 89. So you understood what do we mean by midpoint? मिड पॉइंट मीन्स वो पॉइंट उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. Coming to question number 6. So question number 6 of exercise 5.1 says, if B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where ABCD lie on a straight line, say YAB equal to CD. Say YAB equal to CD. So this is our question number 6. So let's understand first ये question में पूछ क्या रहा है और बोल क्या रहा है. So if B is the midpoint of AC. अच्छा, ये जो ऊपर लाइन है इससे हमें पता चल रहा है that AC is a line segment. So let's draw a line segment. ठीक है. अच्छा, हमें ये भी बोला गया दैट ABCD लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. जो ABCD है वो एक स्ट्रेट लाइन पे ही लाई कर रहे हैं. थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं अभी. तो यहाँ पे दिस इज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. मतलब एक लाइन सेगमेंट है AC. लेट्स सपोज दिस इज AC. सो B इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट. ठीक है, इतना तो क्लियर है. AC हमारी फर्स्ट लाइन से इतना आ रहा है दैट B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. AC ड्रॉ किया, B को बीच में लिख लिया. B मिड पॉइंट है, मतलब दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. अब C एक मिड पॉइंट बता रहा है किसका, B और D का. सो इसको थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ पे बना देते हैं D. सो अब B किसका मिड पॉइंट है, AC का, और C किसका मिड पॉइंट है, BD का. ठीक है, वेयर ABCD लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ABCD एक स्ट्रेट लाइन पे भी लाई कर गए. से YAB इक्वल टू CD. सो हमें अब ये बताना है कि AB CD के इक्वल क्यों है. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, we have to prove that AB equal to CD. तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि AB CD के इक्वल है. सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो नोट डाउन कर लेते हैं. सो व्हाट इज गिवन, B is मिड पॉइंट ऑफ AC. यही गिवन है. ये थोड़ा सा उधर शिफ्ट करना पड़ेगा हमें.
A, B, C and D. ठीक है. So B is midpoint of AC. ये given है in the first line. So it means AB. अब यहाँ से क्या मिलेगा, अगर ये midpoint है इन दोनों का AC का, so AB equal to BC मिलेगा. So AB equal to BC. ठीक है, यहाँ से हमें ये मिल गया. Second step is C is the midpoint of BD. ये भी गिवन है. इससे क्या मिलेगा, C अगर मिड पॉइंट है BD का, सो BC इक्वल होगा CD के. BC विल बी इक्वल टू CD. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. तो हमें यहाँ से टू थिंग्स वी गॉट, दैट AB equal to BC and BC equal to CD. So from 1 and 2 what we can say, from 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम, from first and second equation what we can say. देखो, अगर A इक्वल है B के और B इक्वल है C के, तो ऑटोमेटिकली A हो जाता है इक्वल C के. ये तो बहुत इजी कंसेप्ट है. ये तो हमें पता ही है कि अगर A B के इक्वल है और B C के इक्वल है, सो A इक्वल टू C भी हो जाएगा, क्योंकि B है यहाँ पे, B A के इक्वल है और B ही C के भी इक्वल है. तो A और C भी तो इक्वल ही हुए, क्योंकि A B के भी इक्वल है और C B के भी इक्वल है, तो A और C भी इक्वल ही हुए. तो ऐसे इधर अगर हम देखें, AB इक्वल टू BC है और BC इक्वल टू CD भी है, तो AB और CD यहीं से ही इक्वल आ गए. सो AB इक्वल टू CD, और यही हमें प्रूफ करना था, दैट AB इक्वल टू CD. सो हेंस प्रूव्ड. AB इक्वल टू CD यहां से प्रूव हो गया. Okay, so this is not visible. Wait. So I think now the board is clearly visible. Yes. All right. So let's recall what we did in this question again. देखो, सबसे पहले हमें बोला गया था that B is the midpoint of AC. अगर B AC का midpoint है और C BD का midpoint है और चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे लाई करेंगे. ठीक है, B AC का midpoint है और C BD का midpoint है. ठीक है, अब B AC का midpoint है, इसलिए हम बोल सकते हैं that AB और BC इक्वल है, क्योंकि midpoint का मतलब क्या है, डिवाइडिंग द लाइन इन टू इक्वल पार्ट्स. एंड C अगर BD का मिड पॉइंट है, तो BC और CD भी इक्वल होंगे. अब AB और BC इक्वल है, BC और CD इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली AB और CD भी इक्वल होंगे. बिकॉज अगर दो अलग अलग चीज सेम चीज के इक्वल ही हैं, तो वो दोनों अलग अलग चीज भी इक्वल ही होती हैं. ठीक है, इफ एन एप्पल इक्वल्स टू अ बनाना एंड अ बनाना इक्वल्स टू अ पाइनएप्पल, सो एप्पल और पाइनएप्पल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं. यही यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये AB और CD इक्वल कैसे हुए, बिकॉज दोनों इक्वल है BC के. AB भी BC के इक्वल है बिकॉज B मिड पॉइंट है, और CD भी BC के इक्वल है बिकॉज C मिड पॉइंट है, इसलिए AB और CD भी इक्वल हो गए. राइट. So this was question number 6. ये थोड़ा important question है इस exercise का from the examination point of view as well. So I hope ये अच्छे से आपको clear हो गया है. But अगर फिर भी doubt है, so you can mention in that comment section below. And please pause the video and note down each and every point of this question also. Okay, so I hope you have taken the screenshot of question number 6 also. So this was an important question of this exercise, and I hope this question is clear to you.
So now we are moving on to question number 7. Question number 7 is not an important question. ये examination point of view से बिल्कुल important question नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत explain कर रही हूँ so that ऐसा ना हो कि हम इसको बिल्कुल ही skip कर दें. So let's start with question number 7. So this is the last question of this exercise. Then we can move on to our next exercise. Question number 7 of exercise 5.1 says, draw 5 triangles and measure their sides. Check in each case if the sum of the lengths of any two sides is always less than the third side. So this is our 7th question. The question says, draw 5 triangles and measure their sides. We have to draw 5 different types of triangles. In our introduction video, we discussed 6 types of triangles on the basis of sides and on the basis of angles. तो वही एक type का हम यहाँ पे draw कर लेंगे 5 different types of triangles, and then we have to measure their sides and check in each case if the sum of the lengths of any two sides is always less than the थर्ड साइड और नॉट. सो ये हमेशा होता है ट्राइंगल की जो सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स थर्ड साइड से हमेशा कम होती ही है. तो हम ये चेक करेंगे बाय ड्रॉइंग 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. अब देखो मैं यहाँ पे स्केल से या फिर कंपास उससे डिवाइडर से तो चेक नहीं कर सकती बोर्ड पे, बट मैं आपको 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ड्रॉ करके होमवर्क दे सकती हूँ कि आप उनको मेजर करो और फिर उनको चेक करो, फिर इस वाली इक्वेशन को चेक करो कि क्या सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स इज always less than the third side or not. ये आपको चेक करना है by measuring the sides of the triangle by using ruler और divider. So ये कैसे आप चेक करोगे? पहले तो अभी देखो कि आप ट्राइंगल कौन से शेप के बनाओगे. So the first type of triangle that we discussed, acute angled triangle. ठीक है, इसके तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं ए बी एंड सी. ये आप पहले ऐसे ही बना के उसकी लेंथ चेक करोगे. देन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल एटलीस्ट मतलब कोई भी एक एंगल उसका ऑब्ट्यूज है, जैसे इसमें ये वाला, ये दोनों एक्यूट है. सो अगेन ए बी एंड सी. थर्ड इज राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है. सो ए बी एंड सी. सो दिस इज 90 डिग्री एंगल. तो ये तो 3 टाइप के एंगल ट्राइंगल हुए. द फोर्थ वन अब आप एक ले लो, आइसोसेलेस ट्राइंगल. जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं. एंड फिर हम ले लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. राइट. तो ये 5 टाइप्स के
ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे हैं जिसको आपको डिवाइडर से या फिर रूलर से मेजर करके जिसकी लेंथ को चेक करना है और ये बताना है इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड और नॉट। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स थर्ड साइड से कम ही होंगी, तो ये हमें चेक करना है और ये बताना है कि किस किस फिगर में सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन दी थर्ड साइड। तो ऐसा हो सकता है कि आप इसको होम टास्क में चेक करें, ड्रॉ करें पहले ये सारी फिगर, फिर उसकी मेजरमेंट साइड्स की मेजरमेंट लें थ्रू डिवाइडर और रूलर एंड देन उसको यहाँ पे मेजरमेंट लिख दें। सपोज ये है 5 सेंटीमीटर, ये आया 4.9 सेंटीमीटर और ऐसे ही ये आया 6 सेंटीमीटर। सो ऐसे करके सबकी मेजरमेंट लिख दे, फिर सम करें किसी भी दो साइड्स का और चेक करें क्या वो थर्ड साइड से कम है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका होम टास्क है। यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक्स बिकॉज दिस इज नॉट possible for me to do this on the board. Okay, so please pause the video and take the screenshot कि कैसे कैसे हम 5 types of triangles we can draw. All right, so this was question number 7. See, यहाँ पे ना क्वेश्चन में हमें गिवन है that the sum of the lengths of any two sides is always less than the third side, but लेस कभी भी पॉसिबल नहीं होता, हमेशा ग्रेटर होती है। जैसे यहाँ पे भी अगर हम इस वाले एग्जाम्पल को भी चेक करेंगे तो अगर हम ये दोनों लेंथ लेते हैं तो 6 + 5 इज 11 4.5 से ग्रेटर है। ठीक है, अगर हम ये दोनों भी लेते हैं तो 4.9 + 5 will give us 9.9 which is greater than 6। और अगर हम ये दोनों भी साइड्स लेते हैं so 6 + 4.9 will give us 10.9 which is greater than 5। so इससे हमें क्या पता चल रहा है कि sum of the lengths of any two sides is always greater than the third side। ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट यहाँ पे जो लेस गिवन है ना ये गलत है। बट एज आई कैन सी क्वेश्चन में लेस ही गिवन है। Check in each case if the sum of the lengths of any two sides is always less than the third side। तो ये wrong है। तो ऐसा I don't think ऐसा कोई भी केस आएगा जिसमें लेस होगा सम दोनों लेंथ्स का थर्ड लेंथ से। ठीक है, तो अब आप ये चेक करोगे खुद मेजर करके। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, हमने चेक भी कर लिया, तो दोनों दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है, तो इट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, सो अब आप सारे ट्राइंगल्स में जो आप ये चेक करेंगे द कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर टू यू। सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन दैट यस मैम क्वेश्चन नंबर 7 the statement is that the sum of the lengths of any two sides is always greater than the third side and not less than the third side। so if you will write the comment, no, I will also be satisfied that yes, students are understanding what I am teaching। so this was question number 7। this was the last question of exercise 5.1 and also ये हमने थोड़ा सा होम टास्क दिया है आपको बिकॉज ये बोर्ड पे करना पॉसिबल भी नहीं है। so it will be much easier if you will be solving it yourself। ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, it is a very simple question, just measurement हमें ट्राइंगल की साइड्स की चाहिए, तो वो आप खुद रूलर से या फिर डिवाइडर से आप मेजर कर सकते हैं। All right, so this was the last question of exercise 5.1। with this we have completed our exercise 5.1। so I'm signing up here। I'll be coming up with a new video. In that video we'll be starting with a new exercise 5.2। so stay tuned and practice more and more questions, practice as much as questions that are possible different books से, net से and from anywhere जहाँ से आप questions ले सकते हैं। प्लीज सॉल्व देम बिकॉज मैथ्स का की यही है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। ओके, सो आई विल बी कमिंग अप विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।